Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Students, now we will continue your previous exercise. So let's start question number 8. If a deposit of rupees 4,000 yields an interest of rupees 560 in 2 years, how much interest would a deposit of rupees 5,000 yield in the same period of time? That means ये अगर डिपॉजिट करता है 4,000 रुपीज़ तो उस पर इंटरेस्ट होता है 560 इन 2 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट होगा अगर वो डिपॉजिट करे 5,000 रुपीज़. ओके एंड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स 2 ईयर्स में ही. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर टू थिंग, वन इज डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज हेयर टाइम, एंड टाइम विल बी सेम, सो दैट मीन्स नो चेंजेस हेयर. Okay, so two things are there, that is one is deposit, okay, and second one is interest. Okay, so students, deposit is here 4,000 rupees and interest is here 560. Okay, and अगर वो डिपॉजिट करे 5,000 रुपीज़ सो कितना इंटरेस्ट होगा? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में क्या है, अगर 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है तो 560 इंटरेस्ट होता है. अगर 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या किया, यहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा किया तो सिंपल है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा. दैट इज सिंपल. सो दैट मीन्स दैट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन. दिस इज इन direct variation. Okay students, and now we can write as that is 4,000 and ratio 5,000 and is proportion to the 560 is to be x. Okay students, now product of extreme is equal to product of means, so we can write as 4,000 into x is equal to 5,000 into 560. Okay, so now x is equal to 5,000 into 560 upon 4,000. Okay, so 3 0 cancel. Okay, so students, 4 ones are 4 and 4 4s are 16, that is 140. So here x is equal to 5 into 140. Okay, so that is 14 5s are 70, so that is 700. ओके सो दैट मीन्स अगर वो 5,000 डिपॉजिट करता है सो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 700 रुपीज़. इज दैट क्लियर? ओके सो दैट मीन्स 700 इंटरेस्ट वुड a deposit of rupees 5,000. Okay, so that is your answer. Next one is question number 9. Arpita purchased 4 kg sugar for rupees 168. How much does she need to pay for 7 kg sugar? That means Arpita purchase करती है 4 kg sugar. Okay, कितने रुपीज़ में? 168 रुपीज़ में. So students, अगर उसे 7 kg sugar purchase करनी हो तो उसे कितने रुपीज़ देने होंगे? Okay student, that means there are two things. What is? Yes, what are? One is sugar and second one is rupees, that means cost. Okay, so one is sugar and second one is rupees. Okay students, so sugar 4 kg and students rupees is here 168, and when it purchased 7 kg, so that means, okay, so here what is the cost? Okay students, so students, as you can see here, अगर 4 kg शुगर आप परचेज़ करते हैं वो 168 रुपीज़ की आई. अगर आपको उससे ज़्यादा शुगर परचेज़ करनी होगी तो सिंपल है, उससे ज़्यादा रुपीज़ चाहिएंगे आपको. ओके, दैट मीन्स अगर 4 kg शुगर इतने की है तो 7 kg तो उससे ज़्यादा ही आएगी. सो दैट मीन्स अगर शुगर आपको ज़्यादा लेनी है तो सिंपल है, रुपीज़ भी आपको ज़्यादा लेने होंगे. ओके, सो दैट मीन्स देयर इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, so there is in direct variation. Okay students,
So here students direct variation है, and students we can write as this type. And one more thing is here, students we can write just 4 upon 7 is equal to 168 upon x if it is in direct variation. Okay, अगर direct variation में है तो हम just इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay, so that means 4 upon 7 and 168 upon x, because student that is the ratio it will be divide. Okay, so now we can do cross multiply here. So 4 into x, that is 7 into 168. So we can write as x is equal to 7 into 168 upon 4. Okay, so 4 4s are 16 and 4 2s are 8. So x is equal to 7 into 42. So we can write as x is equal to 7 2s are 14, then 7 4s are 28 and then 30. So 304. Okay, so that means अगर उसे 7 kg शुगर परचेज करनी है तो उसे 304 रुपीज़ पे करने होंगे. Okay students, is that clear? Okay, so that is your answer. So we can write as hence 304 she need to pay for 7 kg sugar. Okay, so that is your answer. Okay student, that means उसे पे करने होंगे 304 रुपीज़. ओके, 7 kg शुगर परचेज करने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 120 सेंटीमीटर हाई पोल इज 102 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ a 360 centimeter high pole. And B part is here, height of a pole that has shadow of 229.5 centimeter. Okay students, that means 120 centimeter high. Okay, that means एक पोल है जो 120 सेंटीमीटर हाई है. ओके स्टूडेंट्स, एंड उसकी जो शेडो की लेंथ है वो 102 सेंटीमीटर है. सो आपको फाइंड करनी है उसकी शेडो की लेंथ जब वो 360 सेंटीमीटर हाई. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स फाइंड हियर टू थिंग्स. वन इज shadow and one is pole. Okay students, so one is pole and second one is shadow. Okay, so students, pole, we have pole 120 centimeter. Okay, so that means 120 centimeter pole है. pole जो है उसकी unit at centimeter and this is also in centimeter. Okay, so what is the shadow? Shadow is here 102 centimeter. Okay स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 120 सेंटीमीटर हाई पोल, दैट मीन्स ये पोल की हाइट है. ओके, एंड जो शेडो की लेंथ है वो 102 सेंटीमीटर है. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको शेडो की लेंथ फाइंड करनी है. दैट मीन्स आपको ये फाइंड करना है. सो दैट मीन्स इट वी कैन से एनी वेरिएबल हियर. एंड स्टूडेंट्स, पोल कितना हाई है? 360 सेंटीमीटर हाई. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर पोल की हाइट इंक्रीज होती है सो ऑब्वियसली उसकी शेडो की हाइट भी इंक्रीज होगी. सो वी कैन से देयर इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो देयर इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में एरो एक ही साइड को होते हैं तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज. ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट एज 120 अपॉन 360 इज इक्वल टू 102 अपॉन एक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई हेयर. 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 102. सो एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 102 upon 120. Okay, so 10 cancel this 10 and 12 3s are 36. So we have 3 into 102, or we can write as 3 2s are 6 and 3 1s are 3. So that means 306 centimeter. Okay, so that means अगर पोल 360 सेंटीमीटर हाई होगा तो उसकी शेडो 306 सेंटीमीटर हाई होगी. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके,
So student, that is the A part and B part is here. So B part is here. Yes. Students, पोल की आपके पास हाइट, दिस इज ऑल्सो टू थिंग पोल. सो स्टूडेंट्स, हाइट क्या थी पोल की 120 सेंटीमीटर एंड उसकी शेडो थी 102. एंड नाउ हाइट ऑफ ए पोल दैट हैज शेडो ऑफ 2 to 9.5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स अब पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है. ओके, दैट मीन्स ये फाइंड करनी है. ओके, एंड स्टूडेंट्स इसकी शेडो गिवन है 2 to 9.5. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स अगर शेडो इंक्रीज हुई है तो सिंपल पोल की हाइट भी इंक्रीज होगी. ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके, सो दैट मीन्स देयर इज इन ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन. सो वी कैन राइट एज 120 upon we can say any variable or we can say any variable like y. Okay, x1. Okay, so that is x1 is equal to 102 upon 2 to 9.5. So we can write as x1 into 102 is equal to 120 into 2 to 9.5. So here x1 is equal to 120 into 2 to 9.5 upon 102. Okay students, and this is cancelled by 10. Okay students, 10 cancel by 10. Okay, so that is 2 5s are 10 and 2 1s are 2 and 2 6s are 12. Okay, now we will cut by 3. So 3 1s are 3 and 3 7s are 21. So 3 7s are 21, that is 19, 3 6s are 18, that is 15, so 3 5s are 15. And we can cut one more time, 17 4s are 68. Okay students, that is 85 and 17 5s are 85. Okay students, so students x1 is equal to 6 into 45, or we can write as x1 is equal to 5 6 are 30 and 6 4s are 24, then 3 27, so 27 centimeter. Okay, that is your answer. Okay students, that means अगर उसके पोल की जो हाइट 360 सेंटीमीटर थी तो उसकी शेडो की लेंथ इतनी सेंटीमीटर थी. एंड स्टूडेंट्स, अगर उसकी शेडो 2 to 9.5 सेंटीमीटर थी, उसकी हाइट क्या होगी पोल की 270 सेंटीमीटर. Okay students, so that is your answer. Next one is question number 11. The scale of a map is 1:30 lakh. If the distance between two cities on the map is 4.5 centimeter, then what is the actual distance between them? That means एक मैप का स्केल है ये गिवन. ओके, अगर उन दोनों सिटीज़ की जो डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर है तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है उनके बीच की. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आप मान लीजिए 2 सिटीज़ है एंड उनकी एक्चुअल डिस्टेंस ये आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. ये इसका मैप है एंड यहाँ पर इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो गई. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, 2 थिंग्स आर देयर. वन इज मैप एंड सेकेंड वन इज एक्चुअल डिस्टेंस. दैट इज मैप एंड दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैप में अगर डिस्टेंस 1 है तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 30 लाख. ओके, एंड नाउ अगर उनकी डिस्टेंस अब 4.5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स उसकी जो डिस्टेंस होगी मैप में 4.5 सेंटीमीटर होगी, सो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी फिर ये आपको फाइंड करना है. एंड स्टूडेंट्स, अगर मैप में जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज हुई है तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी. सो दैट मीन्स देयर इज इन direct variation. Okay, is in direct variation. Okay, and we can write as 1 upon 4.5 is equal to 30 lakh upon x. Okay, so x is equal to, that means 1 into x is equal to 4.5 into 30 lakh. Okay, so we can write as x is equal to, there are 6 0 and now
we can multiply it. Students, 3 5s are 15, that means 1 carry. 4 3s are 12, then 13. Okay students. एंड स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर पॉइंट था डेसिमल को रिप्लेस कर दीजिए 10 एंड 1 0 कैंसिल बाय दिस 1 0. ओके, सो दैट मीन्स दैट इज 135 1 2 3 4 5 0 ओनली. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन them. ओके, सो दैट मीन्स hence 135 lakh, okay, is the actual distance. Okay, so that is your answer. And students, now this exercise has completed. So students, if you have any doubt in this exercise, so you can contact or message to me. Okay students, thank you. Have a nice day.